Okay, class. So last time we had started the discussion of the periodic table, and in that we learned about what was the need of having the classification of the periodic table. And in this periodic table, we also learned that at various times, different scientists tried to classify the known elements at that time. So the first one we learned about was Dober-Nair, and Dober-Nair we know classified the elements according to the triads. What was the specialty of triads? That the atomic mass of the center or the middle element was an average of the atomic mass of the first and the third element of that triad. Then came Newland in 1864, and he arranged all the elements in a group of 8. And what was the name octaves represented? It represented that the first element and the eighth element are going to have the same properties. However, here you have to keep in mind that both in the Dober-Nairs as well as the Newlands, in both these classification of elements, the elements were arranged in an increasing order of their atomic mass. देखो, in both of them, that was in the increasing order of their atomic mass. Then both of these classifications were not followed in the coming years. Why? Because these classifications were only true for the light elements, the elements which had lesser mass, but not for the ones which were heavier. And moreover, at that time even the noble gases were not discovered. So when they were discovered, it was not possible for the scientists to arrange the noble gases in triads or even in the octaves given by Newland. Then we learned about Mendeleev. Mendeleev was he was a genius actually, and this Mendeleev was the first one who arranged all the elements in actual uh, in a actual tabular form. And what was the tabular form that we had already discussed? He arranged the elements in two method by following the groups and the periods that we have learned last time. Just like in our timetable, these horizontal rows, Mendeleev called them as periods, and the vertical rows, Mendeleev called them as groups, right? Groups and periods. And Mendeleev arranged all his elements in these groups and periods. I think till here it is clear. Another thing before I start with today's work, we must again keep in mind that even Mendeleev arranged all his elements on the basis of their increasing order of the atomic mass. ये इन तीनों में एक similarity you have to keep in mind, and you have to learn it by heart, that all the classifications were based on increasing order of their atomic mass, whether it was Dober-Nair or it was Newland or it was Mendeleev. Fine. Now let me share another screen with you. That is the latest one that we will be doing today. That is modern periodic law. But say when all the three, the Mendeleev, triad and octaves, when they all were discarded by the scientists because all the three classifications were not able to adjust the heavier elements. मैं जो heavier element कह रही हूँ उससे मेरा मतलब है वो elements जिनके जो atomic masses हैं वो बहुत atomic masses जो हैं जिनके
वो जनरली बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। दीज आर योर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिवन बाय मॉसले। अब हुआ क्या, लेट अस लिसन टू अ स्मॉल इंटरेस्टिंग स्टोरी हियर। बच्चे हुआ क्या कि जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी डिस्कार्ड हो गया, उस टाइम पर बहुत इशू आया इस चीज का कि जब सभी कुछ डिस्कार्ड हो गया, नाउ व्हाट टू डू। ऐसे में came Mosley. Now, who was Mosley? Mosley is a very well known scientist. और Mosley ने क्या किया, Mosley ने was the first one who discovered the atomic numbers. Mosley was working on this concept of atomic numbers. देखो मैंने पिछले आप में आपको बताया था, तीनों क्लासिफिकेशंस जो थी वो एटॉमिक मासेस पर थी, लेकिन जो मॉजले थे ही वाज वर्किंग ऑन एटॉमिक नंबर्स। और क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा था एलिमेंट्स का, ये बात मॉजले को भी मालूम थी। तो मॉजले ने ट्राई किया कि अच्छा ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन एटॉमिक मासेस पर नहीं हो पा रही है, तो मॉजले ने सोचा कि ठीक है, लेट मी चेंज द बेसिक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर की सारी क्लासिफिकेशन चल रही हैं, उसकी जगह मैं ऐसा करता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन है एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर देता हूँ, ठीक है। जिस समय मेंडलीफ ने अपनी एटॉमिक मास के ऊपर क्लासिफिकेशन किया था, ठीक, उस टाइम के ऊपर एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम आई थी, और वो प्रॉब्लम आई थी आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स के अकॉर्डिंगली, आप सबको आइसोटोप्स पता है? व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर दी atoms of the same element, पहली चीज, and they all have same atomic number, ये आपको याद होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मॉजले ने क्या किया कि मॉजले ने अपना जो बेसिक प्रॉपर्टी ली, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, वो बेसिक प्रॉपर्टी उन्होंने ली एटॉमिक नंबर की, देखो ये ली, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। नाउ लेट अस सी क्या इससे कोई फर्क पड़ा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उन्होंने अपना एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगेन उन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, उन सारे नोन एलिमेंट्स को उन्होंने दोबारा से देखो ग्रुप्स, ग्रुप्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट मेंडलीफ ने दिया था, और पीरियड्स में उन्होंने अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को जो था डिवाइड किया। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था मॉसले ने। मॉसले ये टेबल क्यों दिखा पाए? मॉसले ये टेबल इसलिए दिखा पाए बच्चे, क्योंकि मॉसले के पास ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट था, उन्हें पता था कि हम वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं वो भी अरेंज कर सकते हैं, और एलिमेंट्स जो कि हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, देखो ये जो लेटी हुई रोज हैं उसको ही कॉल्ड देम एज पीरियड्स, ठीक। और इसमें देखो उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया। सबसे पहले उन्होंने अरेंज किया हाइड्रोजन को, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एलिमेंट्स लिए थे वो किस बेसिस पर लिए थे? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। याद रखना, एटॉमिक मास नहीं, इट वाज एटॉमिक नंबर। सो हाइड्रोजन इज 1, ठीक। दूसरा एटॉमिक नंबर किसका था? दूसरा एटॉमिक नंबर था बेरिलियम। देन इट वाज आफ्टर बेरिलियम it goes to boron, then carbon, then nitrogen, oxygen, fluorine and neon, so on। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन से हम चले तो नेक्स्ट आया हमारा हीलियम। हीलियम इज नंबर 2, लिथियम इज नंबर 3, बेरिलियम इज नंबर 4, बोरोन इज 5, कार्बन इज 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। आपकी बुक में ये पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, और आप देखना जिस समय आप लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट देखो मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस समय आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे सेम पीरियड में, तो आप देखेंगे कि जो एलिमेंट आया वो
एटॉमिक नंबर इंक्रीज करके आया। और कितने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है? 1 से, 2 से, कितने से? एवरी एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग बाय द ऑर्डर ऑफ 1। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नेक्स्ट आया एटॉमिक नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे आपके पीरियड्स खत्म हो गए। देखो आगे तो कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो ऑब्वियसली घूम के हम कहाँ आएंगे? नेक्स्ट पीरियड पर आए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस पीरियड में नए पीरियड में लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, अब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़े, आ गए बेरिलियम पे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, राइट। और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, बोरोन पे पहुंच गए, एटॉमिक नंबर 5, देन 6, देन 7 एंड सो ऑन। और लास्ट में देखो एटॉमिक नंबर आ रहा है 10। ठीक, अब फिर से यहाँ पे देखो पीरियड खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली अब हम आएंगे पीरियड नंबर 3 पर। किससे स्टार्ट हुआ? नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 11, 12, and then we go here 13, 14 and so on, then argon is 18. So point I am trying to make is कि क्योंकि उस टाइम पर मॉजले खुद एटॉमिक नंबर्स के ऊपर काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। उन्होंने कहा कि सारी प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है? सारी प्रॉब्लम आ रही है हमें क्योंकि हम सारे के सारे एलिमेंट्स को किस चीज पे क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? एटॉमिक वेट के ऊपर क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एटॉमिक वेट की जगह क्लासिफाई करें अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के ऊपर, तो हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। एंड दैट इज हाउ ही वाज एक्चुअली एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गिविंग अस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया जो अभी हमने नीचे डिस्कस किया था। और इसी के साथ उन्होंने हमें दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हमने लास्ट क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ा था। इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है इट इज वेरी सिमिलर टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। देखो सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, अगर आप एक भी लॉ की डेफिनेशन याद कर लेंगे तो आपको दोनों की याद हो जाएंगी। देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, राइट। ये हमने इसको हमें याद करना है बच्चे, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, so this is your modern periodic law. The physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number. अब अगेन यहाँ क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? सो लेट अस जस्ट सी व्हाट डज द पीरियोडिक फंक्शन मीन। इसके लिए दोबारा से हम लोग नीचे चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में। हियर बेटे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एक पीरियड खत्म होगा, जैसे ही ये फर्स्ट पीरियड देखते हैं, देखो ये लिखा है ना फर्स्ट पीरियड 1। जब फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, ये खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली कौन सा पीरियड शुरू हुआ? सेकेंड। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन के नीचे कौन आ रहा है? लिथियम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया था। हीलियम के बाद आया हमारा लिथियम। तो हम ये देखेंगे कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो आपका लिथियम है, दिस लिथियम, it is going to have it is going to have similar properties as that of हाइड्रोजन। इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। सिमिलरली उसके बाद हम आए सोडियम पर। अगर हम देखो, अगर हम सेकेंड पीरियड, ये जो सेकेंड पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नियॉन के बाद पीरियड खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम आए नेक्स्ट पीरियड पर जिसमें आ गया सोडियम। अब सोडियम और लिथियम ये लोग सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। ग्रुप क्या होता है? जो वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, सो दे आर द मेंबर्स ऑफ द वर्टिकल कॉलम विच वी कॉल एज ग्रुप। ठीक है, देखो
ये जो नीचे की तरफ जा रहा है वो ग्रुप है, ठीक। और जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, वेट, जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है वो क्या है, वो पीरियड मूव कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम ये सेम ग्रुप के मेंबर्स बन गए। लेकिन ये सेम ग्रुप के मेंबर कब बने, जब यहाँ पे हमारा पीरियड खत्म हो गया था। देखो हीलियम के बाद पीरियड खत्म हो गया तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ गया, फिर से फर्स्ट ग्रुप में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पीरियड तो चेंज हो गया लेकिन ग्रुप तो सेम ही है। सिमिलरली सेकंड ग्रुप में देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो नियॉन के बाद पीरियड तो खत्म हो गया लेकिन हम कहाँ आ गए, नेक्स्ट पीरियड में आ गए, लेकिन अभी भी देखो ग्रुप तो सेम ही है। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हर पीरियड के बाद, हर एक इंटरवल के बाद नेक्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, जैसे लिथियम और सोडियम इनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज होंगी। सिमिलरली अब हम एग्जांपल देखते हैं बेरिलियम का, ठीक है। अब बेरिलियम में हम देखते हैं बेरिलियम को अगर हम देखें तो बेरिलियम जो है, जब बेरिलियम से हम आगे चलेंगे, कहाँ पे आगे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। नियॉन के बाद पीरियड खत्म, नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट पीरियड पे आ गए सोडियम वाले। लेकिन हमें देखना किसको है, हमें देखना है उस एलिमेंट को जो बेरिलियम के नीचे है, ठीक। तो बेरिलियम के नीचे कौन आ रहा है, अब मैग्नीशियम आ रहा है, राइट। तो जब मैग्नीशियम आ रहा है इसके नीचे, हियर इज मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। क्यों, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, इंटरवल मतलब एक पीरियड खत्म होने के बाद हम जब दूसरे पीरियड में आए, उस पीरियड में शर्त ये है कि आप सेम ग्रुप में जाएंगे। जैसे ये ग्रुप नंबर 2 है तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आ रहा है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होने वाली हैं। सिमिलरली देखो बोरोन और एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होने वाली हैं। और किस किस की प्रॉपर्टीज देखो सेम होने वाली हैं, लेट अस सी, प्रॉपर्टीज सेम होने वाली हैं आपके कार्बन की और आपके सिलिकॉन की। और किसकी प्रॉपर्टीज सेम होने वाली है, आपकी होने वाली है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की और सल्फर की, इनकी सेम होंगी, ठीक है। सो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का आई होप आप लोगों को मतलब क्लियर हो गया होगा। So we are only learning about the Moseley's modern periodic law, which says that all the physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic number। इसको आपको बच्चे लर्न करना है, एग्जाम में ये पूरा का पूरा आपका 1 मार्क क्वेश्चन आता है। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और नीचे हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके, कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर। कौन से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। बच्चे अपने कॉपीज में जो मैं अंडरलाइन करती हूँ आप साथ के साथ इसको अंडरलाइन किया करिए। इज दैट क्लियर, ओके फाइन। अब हम आते हैं एक और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट, जल्दी से देख लेते हैं। Let us talk of the all right. Class, it is already 6 o'clock. I think I'll take the second concept in the next class. Right now, I am closing the recording and I'll be taking your questions now.